You have OptiSystem software. So I hope the screen is visible. So this is OptiSystem software. So if you have installed, so I will talk to your HOD and will provide you 1 month free license so that you can evaluate it at your personal systems in case you have your own laptops or PCs at home. So what you can do is you can install this and you can start doing it. You can do some of the exercise because you can also create your final year projects on this or even your like semester break off projects. I do hope कि हर सेमेस्टर के बाद आपको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कुछ करिकुलम में होता होगा. तो in that case you can utilize this software tool to make a project. Let me show you how you can enhance this. So this is the new sheet. So those who are connected through like using their mobile phones, I'm not sure whether they can easily see the screen clearly, but the people, those who joined through their systems, they can just focus on how to use this. New sheet means a new area. It is kind of a breadboard. It is a kind of a space given to you where you can drag and drop your components and you can join these components with each other. So first of all, under default, we have a vast library. Now, for example, if we make a very, very basic experiment, transmitters. So first of all, as per the block diagram of optical communication, we need a transmitter, and transmitter requires a carrier which will be a laser source. So here we have a continuous wave laser source. ये बहुत common है. In case you have this kind of a components available in your labs, you can ask your lab assistants or you can ask the referred responsible professor who looks into all these components. They can also show you. So this is continuous wave laser, and if you double click, you can see the parameters like frequency. Right now its frequency is 193.1 terahertz, which is equivalent to 1552 nm. तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का सबसे कॉमन और बाय डिफॉल्ट वेवलेंथ, just a second, somebody wants to join. Okay, so the most common wavelength used for optical communication is 1550, approximately 192 terahertz. So this is the frequency. Power is 0 dBm. So you can change the units watt, milliwatt, or dBm. So 0 dBm is nothing, just 1 milliwatt. So let us start with 1 milliwatt only. 1 milliwatt is like even our LEDs used a very, very low wattage of power, like 9 milliwatt, 10 milliwatt, or you can say on a upper side, 1 watt, 2 watt. So these are the power factors. Okay. So this is a CW laser source, 1550 nm wavelength. And now we want some data. Laser to hogi. And data, what kind of data we want to send? So let us send the data, transmitters library, bit sequence, pseudo-random bit sequence generator. Pseudo-random bit sequence generator means this will generate zeros and one. The whole communication system works on digital phenomena, that is 0 and 1. I hope everybody is clear about analog and digital.
right? So in the digital form, whatever the data, for example, you have text, you have audio, you have visual, you have image. So that needs to be converted to digital form, that is 0 and 1. So this component creates zeros and ones. And what is the limitation of this 0 and 1? So for that, you need to double click anywhere on this layout. If I double click here, so right now the bitrate of this window is 10 Gbps. 10 Gbps, 10 exponential to 9 bits per second, that is 10 Gbps. So you can start working on 2.5 Gbps or some Mbps also. It totally depends upon you. Let us use this by default value, that is 10 exponential to 9 bits, that is 10 Gbps. Reference wavelength, so we will be working on 1550 nm frequency, that is wavelength, 1550 nm wavelength. So whatever the component you will be utilizing here should have 1550 nm working capability. ये data भी हो गया. This is the data, pseudo random bits. This is CW laser. And then I need some pulses, electrical pulses. So just wanted to ask, has everyone learned about this techniques, non-return to zero, return to zero, CSR, are that right? So I think now this will be easy for you to proceed. Just a second. NRZ pulse generator. So if you double click on the output port, you can see this is a binary signal in the forms of zeros and ones. This binary signal goes into NRZ pulse generator because for generating the electrical pulses, it requires binary signal at the input area, and output, it will give you electrical signal. So whatever the pulses are feeding inside this NRZ pulse will be converted into electrical signal. Means your message, your data will be converted to electrical signal here. Now, our main motive is to merge this on a carrier, that is laser source. So for that, we need a modulation. So for modulation, under modulators, optical, Mach-Zehnder modulator. So Mach and Zehnder were two scientists, those who have generated Mach-Zehnder modulator. So this is very commonly used optical modulator and very famous. So in case you visit industry section like Bell or any telecommunication sector like Airtel, BSNL, or even other PSUs, so you can find out the hardwares they are working on. So laser sources, modulators, and some pulse generators. So these are very common. Now we have modulated our signal. So this laser is creating an optical signal, which is used as a carrier here. This is the modulator, and this is the electrical signal coming from NRZ pulse generator. Basically, this is our data, and this gets binded here. This is modulated here, and in turn, now our optical signal is ready for the transmitter. So this is the transmitter, or you can see the optical transmitter we have made right now, with the frequency, or you can see the wavelength 1550 nm and power 1 milliwatt. Now, after the transmitter, and as per this block diagram, after this transmitter, we need a communication channel, means to transmit the data. Now the medium will be, you can choose a medium optical fiber or a wireless optical channel. So we will see how we can proceed further.
So here we have optical fibers library. You can double click on this, and this is the optical fiber. This is a generic optical fiber, a common optical fiber. Now, if you double click on this, you can change the parameters. The reference wavelength is 1550. You can change it, but right now we are working on the same 1550 nm. This is fine. Length, by default length is 50 kilometers. But for the first instance, let us use it for 10 kilometers only. Attenuation, yes, we are using the attenuation. So these parameters like group velocity dispersion, third order dispersion, these are all the physics related to a manufacturing or composition of an optical fiber. So you can match these parameters with actual optical fiber in your lab. I do hope you have an actual optical fiber sample in your lab. In case you have that, you can go through the data sheet available for that product with you. So that mentions everything: group velocity, PMD, non-linearity, numerical aperture, and so on. So right now, I am using by default value. We have just changed its length, that is 10 kilometers. So 10 kilometer की optical fiber is ready here. Now channel is completed. Now I need a receiver. So for a receiver, we have a receivers library, then photo detectors. Here we have pin, APD, optical chirp, and so on. So you can choose any pin. Photodiode भी use कर सकते हो, avalanche photodiode भी use कर सकते हो. So it's better to use pin photodiode first of all. This is fine. Now ये एक हमारा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम रेडी हो गया है फॉर 10 kilometers. So you can just imagine like a receiver, you can assume it as your own campus, and transmitter you can assume any nearby, you can say the service provider or any other location like your railway station or bus stand or any other location far, like which is 10 kilometers far from your campus. So transmitting the data, passing it through optical fiber, and then receiving. Now the main factor is, तो अभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक BSNL, एयरटेल, जियो, रिलायंस, मतलब जो भी टेलीकम्युनिकेशन बेस्ड और डिफेंस की बात करें या इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर की बात करें, so whatever the terminology they use is very similar to this kind of a basic experiment. For example, ये system तो बना लिया. Now how you can analyze this? So for the analysis of the system, you need to visualize the results. अब starting से शुरू करते हैं कि कहाँ पे कौन कौन से results देखने में. For example, CW laser. Now एक लेजर के लिए सबसे बड़ी चीज जो जरूरी चीज है वो दैट इज अ लेजर स्पेक्ट्रम. So under visualizer library, because this is an optical signal generating device, we need to use optical visualizer. You can connect, sorry, you can connect this optical spectrum analyzer. You can select optical time domain visualizer, optical power meter. ये 3 डिवाइसेस मैंने लेजर के साथ कनेक्ट कर दिए. Then coming to this pseudo random bit sequence generator, now you want to see कि कैसे आपके पास कौन कौन सी बिट्स कैसे कैसे आ रही हैं. व्यू सिग्नल विजुलाइजर, तो ये किसी भी तरह का सिग्नल हो आपको यहाँ पे जीरोस एंड वंस की फॉर्म में आपको दिखा देगा. देन बाइनरी, बिकॉज दिस इज generating a binary output signal, so you can connect this as well. Then NRZ pulse generator. NRZ pulse generator is a electrical signal generating device. For that, we can go inside this electrical visualizers.
ऑसिलोस्कोप आपकी लैब में पड़ा हुआ है, तो यू कैन इजीली गेट टू नो। इलेक्ट्रिकल पल्सेस यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। देन आरएफ, रेडियो फ्रीक्वेंसी, देन इलेक्ट्रिकल पावर। जो जो इलेक्ट्रिकल एनालिसिस मेरे को चाहिए मैंने वो यहाँ पे लगा लिए, जो ऑप्टिकल चाहिए थे मेरे को यहाँ पे लग गए। सिमिलरली आफ्टर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के बाद भी मेरे को ये वाले चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली। Now the beauty of this tool is, if my this toggle auto connect on move is enabled, तो अगर आपके कनेक्शन डिलीट भी हो जाते हैं, तो इन केस यू जस्ट move this component and this will get connected to the corresponding one। ये सारे के सारे कनेक्शन मैक जेंडर मॉड्यूलेटर के साथ कनेक्टेड हैं। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम एनालाइजर, ऑप्टिकल टाइम डोमेन एंड ऑप्टिकल पावर मीटर। सिमिलरली बिकॉज यहाँ पे ऑप्टिकल सिग्नल था इसलिए ऑप्टिकल डिवाइसेस लगे। सिमिलरली ऑप्टिकल फाइबर के अक्रॉस यहाँ पे भी मैं सेम ऑप्टिकल विजुअलाइजर्स अटैच कर दिए। नाउ इट कम्स टू द पॉइंट ऑफ पिन फोटोडायोड। रिसीवर के अक्रॉस हम क्या देख रहे हैं? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसीवर के अक्रॉस एक यहाँ पे कंपोनेंट है दैट इज बीईआर एनालाइजर। व्हाई? ये मैंने डाटा शीट खोली है। If you double click on any component, it will give you the data sheet of the respective component, full and fledged, कैसे बना, कैसे, क्या इसका technical background है, everything is available here along with the references. So this visualizer allows the users to calculate and display the bit error rate of an electrical signal automatically. It can estimate the VER using different algorithms such as Gaussian and chi-squared, and derive different matrices from the eye diagram, such as Q factor, eye opening, eye closure, extinction ratio, eye height, jitter, etc. It can also take in account forward error correction, plot BER patterns, and estimate system penalties and margins. So, अगर हम यहाँ पे bit error rate की बात करें, आई डायग्राम की बात करें, क्यू फैक्टर की बात करें, आई ओपनिंग की बात करें, so these are very important terms when you are maintaining a optical communication system. So that plays a very important role. Now, if I drag and drop this here, so pin photodiode was basically entertaining optical signal here and converting it to electrical signal. So this electrical signal will be connected here because the last port of the BER analyzer requires electrical signal from a receiver side. Second port of BER analyzer also requires electrical signal, but from the transmitter side. And the first port of BER analyzer require binary signal of transmitter, means whatever the data you have transmitted. So after comparing these, means first two from the transmitter side and last one from the receiver side. After simulation, this will compare the mathematical results and will show you all the related information. You can also connect this RF spectrum, this one, all three at this section also. ये एक complete optical communication setup ready हो गया है यहाँ पे. In other terms, actually में इन डिवाइसेस के और कंपोनेंट्स के अगर रेप्लिका इफ यू वांट टू परचेज हार्डवेयर सेटअप, सो ये आपको 1 करोड़ से ज्यादा का पड़ेगा, मोर देन 1 करोड़.
स्पेक्ट्रम एनालाइजर मार्केट से मिलता है 25-30 लाख का, ऑप्टिकल टाइम डोमेन विजुअलाइजर भी 5-10 लाख का, फिर पावर मीटर कुछ 50,000 का मिल जाता है। सिमिलरली मॉड्यूलेटर्स, लेजर्स, ऑप्टिकल फाइबर 10 किलोमीटर की मतलब 10 लाख रुपए। तो eventually the combination of all the components will be at least equivalent to 1 करोड़। तो 1 करोड़ का सेटअप बनाने के बाद भी अगर वो ना चले तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट प्रोजेक्ट? सो दैट इज द ओनली रीजन कि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन से पहले जो रिसर्च साइंटिस्ट और इंजीनियर्स होते हैं वो सिमुलेट करके देख लेते हैं कि अगर मैं ये कंपोनेंट इस पैरामीटर के साथ यूज करूंगा एक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने के लिए, तो मेरे को किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सिमुलेट दिस। यहाँ पे एक कैलकुलेट बटन है, दैट इज अ प्ले बटन राइट नाउ, एंड यू कैन क्लिक प्ले हियर। कैलकुलेशन इज फिनिश्ड, सिमुलेट हो गया है। अब स्टार्टिंग से चलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लेजर सोर्स। ये रहा आपका ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम ऑफ अ लेजर सोर्स। 1550 मींस 1.55 माइक्रॉन्स की वेवलेंथ पे आपको ये पीक मिल रही है, दैट इज वेरी गुड। अगर इसका रेजोल्यूशन मैं देखना चाहूं तो दिस इज द 0.01 nm बैंडविड्थ का रेजोल्यूशन आप देख रहे हो 1550 nm पे। इसको आप सेव भी कर सकते हो, कॉपी इमेज टू क्लिपबोर्ड। इसका जो ये पूरा का पूरा डायग्राम है, इसका जो कर्व है इसको आप और भी थिक कर सकते हो लाइन को। इसको लेजेंड को लेबल कर सकते हो। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दिस ग्राफ, बिकॉज जो स्टूडेंट्स जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह कंपाइल करते हैं, लिखते हैं, उसमें दे नीड टू copy and paste the results they have oriented from this simulation. So this can help you to make your own projects. You can compile this, you can like write the data on a Word file and copy and paste this data on the same. So this can help you. So that was optical spectrum. And ये है time domain, means power versus time, that is constant. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज कांस्टेंट पावर अप्रोक्सीमेटली 950 माइक्रॉन्स, एंड दिस इज 1 मिलीवाट ऑफ पावर। जो हमने पावर यहाँ पे दी है वो 1 मिलीवाट पावर इन वॉटेज, एंड दिस इज 1 मिलीवाट with respect to time, 10 nanosecond, 30 nanosecond and so on. Then अब बाइनरी डिजिट्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नल व्यूअर, तो ये है आपके 0 एंड 1। आप देख सकते हैं 001, 001 एंड सो ऑन। ये आपका डिजिटल डाटा है सारे का सारा। आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो एक्सेल में। यू कैन एक्सपोर्ट इट टू टेक्स्ट, एक्सेल, कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये सारा जीरोज एंड वंस का डाटा है। अप्रोक्सीमेटली 128 बिट्स हैं ये, 1028 बिट्स सॉरी। एंड ये बाइनरी सीक्वेंस विजुअलाइजर है। ये आपके जो जीरोज एंड वंस हैं, इसको मैं अगर यहां से जूम करूं, यहां से इधर आए, और आप देख सकते हो ये डिजिट्स, वंस एंड जीरोज। ऑटो सेट, zoom it. Now you can clearly see zeros and ones. So this will also help you. ये भी आप copy paste कर सकते हो। Visualizer का डाटा you can easily copy paste, you can extract it to text, you can extract और export the data के x और y की corresponding values हैं zeros and ones की। आप इसको export कर सकते हो text format में या Excel format में। Then NRZ pulse generator, electrical pulses हैं। First of all oscilloscope में देख लेते हैं। Just hold on for a second.
Yes, students, sorry for the pause. Okay, so we were at this section, NRZ pulse generator. So this is the oscilloscope view, amplitude with respect to time. आपके पास जो लैब में oscilloscope होती हैं उसमें भी आप देखते हो. Because this is NRZ format, so that is the case. You can analyze it. Just a second. So in this case, for example, if it is not a NRZ pulse, what if this is another format? ये एक साइन जनरेटर है एंड फ्रीक्वेंसी इट इज जस्ट फॉर द एग्जाम्पल पर्पस के आप लोग जो ऑसिलोस्कोप पे देखते हो जैसे साइन वेव वगैरह, तो एक साइन जनरेटर है जो साइन वेव जनरेट कर रहा है. एंड इफ आई यूज दिस ऑसिलोस्कोप तो आप देख सकते हो दिस इज जनरेटिंग अ साइन वेव, राइट. एंड ये साइन वेव जो है वो 70 मेगाहर्ट्ज पे है. अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा दूं जो पहले थी, जैसे फॉर एग्जांपल 30 गीगाहर्ट्ज, तो ये नेक्ड आई से आपको विजिबल नहीं होगी, आपको जूम करना पड़ेगा. ये कॉम्पैक्ट हो गई बहुत. तो फॉर दैट जस्ट टेक दिस पार्ट. नाउ यू कैन सी दिस इज द कॉम्पैक्ट sine wave, right? So this is how you can play around with the components and you can see what kind of signal it is generating. This is electrical power, total power. This is noise power, signal power, and this is total power. And here it was optical power, 0 dBm or 1 milliwatt. You can see 1 exponential to -3 watt. That is 1 milliwatt. This is total power. This is noise power -100 dBm. Parameterized signal power, sampled signal power, and then total power. So you have a lot of bandwidth here related to powers, optical time domain, optical spectrum, binary sequence, signal visualizer, oscilloscope, electrical power, then RF. So this is the RF signal. अगर इसका 10 मेगाहर्ट्ज पे रेजोल्यूशन देखा जाए तो वो भी मोर और लेस सेम ही है. Now you can see 100 megahertz पे, फिर 1000 megahertz पे, it gets more and more clearer. So this is power with respect to frequency. अब आप ये देखिए यहाँ पे, this frequency is like more than 100 gigahertz. So if you are planning to work on 5G, 6G, 7G, आप कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हो तो definitely you can utilize this tool for your various kind of applications. अब आते हैं ऑप्टिकल फाइबर पे. ऑप्टिकल फाइबर 10 किलोमीटर्स. अब नहीं, सॉरी, पहले मॉड्यूलेशन पे आते हैं. मॉड्यूलेट होने के बाद यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है ये मिल रहा है. उससे पहले हमारे पास ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम ये था.
अब नाउ यू कैन सी द हार्मोनिक्स, ये जो हार्मोनिक्स कॉम्ब एक तरह से बन रही है, दिस इज ड्यू टू द मॉड्यूलेशन रिजोल्यूशन एंड दिस इज द रिजोल्यूशन। ये जो हार्मोनिक्स यहाँ पे बन रही हैं, पीक्स बन रही हैं, यू कैन सी दिस इज आफ्टर मॉड्यूलेशन, सो यू कैन कंपेयर दिस एज वेल। ऑप्टिकल टाइम डोमेन, सो ये आपका ऑप्टिकल टाइम डोमेन है आफ्टर मॉड्यूलेशन, so you can also compare this optical time domain कि मॉड्यूलेशन से पहले ऑप्टिकल टाइम डोमेन क्या था और मॉड्यूलेशन के बाद क्या रहा। देन आफ्टर पासिंग थ्रू दिस, ये -3.262 चला गया सिग्नल पावर। देन ऑप्टिकल फाइबर के बाद स्पेक्ट्रम, अच्छा स्पेक्ट्रम मिल रहा है, रेजोल्यूशन अच्छा है। ऑप्टिकल टाइम डोमेन, ये हमारे पास जो टाइम डोमेन में पल्सेज आई हैं, पावर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नाउ यू कैन सी दिस। So you can compare these kind of visualizations with respect to what is given at the input and what is at the output. So you can see the signal here. Optical power -5.263. Then across photodiode. Now a very main section. Let us move to BER analyzer. So maximum Q factor is 11. Eye opening is fine, but it is kind of a more into ISI because as an experimental setup, we have not used any filter. तो थंब रूल क्या कहता है कि आप फिल्टर्स भी यूज कीजिए, एम्पलीफायर्स भी यूज कीजिए एम्पलीफाई करने के लिए। तो अभी एम्पलीफिकेशन की जरूरत लग नहीं रही, तो लेट अस यूज अ फिल्टर। फिल्टर लाइब्रेरी है हमारे पास और फिल्टर हमने लगाना है आफ्टर दिस पिन फोटोडायोड। दिस इज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो इलेक्ट्रिकल फिल्टर पे जाते हैं, लो पास बेसल फिल्टर, और ये कनेक्शन यहाँ से हम तोड़ के इसको इसके साथ फिल्टर के बाद जोड़ देते हैं। अब इसको सिमुलेट करके देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। नाउ यू कैन सी द स्मूथनेस ऑफ द सिस्टम। आई डायग्राम बहुत अच्छा मिल गया हमें, वो आई ओपनिंग बहुत अच्छी मिल गई है। ये आई क्या चीज है? आई मींस आपके रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्नल्स जो आ रहे हैं इन साइनोसॉइडल वेव फॉर्म या जीरोज एंड वन के फॉर्म में जो बिट्स आ रही हैं, लगातार 1028 बिट्स ओवरलैप करने के बाद एक सिग्नल फॉर्म होके जो हमें सिग्नल मिल रहा है, दिस इज द आई सिग्नल, आई डायग्राम, एंड दिस इज वेरी गुड सिग्नल। और इसका क्यू फैक्टर अगर मैं आई बंद कर देता हूं, सो दिस इज द क्यू फैक्टर, दिस इज ऑल्सो गुड, 35.081। मिनिमम बिट एरर रेट 6.4 एक्सपोनेंशियल टू -270। मिनिमम बिट एरर रेट ऑपोजिट होगा इसके। देन थ्रेशोल्ड एंड आई हाइट भी है, थ्रेशोल्ड भी है। नाउ यू कैन सी इसके कलर्स इन्वर्ट करने हैं, यू कैन इन्वर्ट द कलर्स फॉर प्रेजेंटेशन एंड यू कैन एक्सपोर्ट दिस डाटा, मींस एक्स एंड वाई की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आप एक एक्सेल में भी सेव कर सकते हैं। I hope you understand. So this is the perfect example for a best optical communication system for 10 kilometers of range. Means आपके कैंपस से लेके 10 किलोमीटर की दूरी से जो आपको सिग्नल आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, एंड सारे के सारे एनालिसिस आपने किए हैं यहाँ पे। क्यू फैक्टर भी अच्छा है, बिट एरर रेट भी ठीक है, और स्पेक्ट्रम अलग अलग जगह पे वो भी अच्छा है। अब एक चीज रह गई है जिसको हम बोलते हैं सिग्नल टू नॉइस रेशो, वो भी देख लेते हैं इसमें। ऑप्टिकल
ऑप्टिकल सिग्नल टू नॉइस रेशो हम ऑप्टिकल फाइबर के बाद लगा सकते हैं। इसमें पहले हमें रेंज देनी पड़ती है, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज। तो ठीक है, 185 टेराहर्ट्ज टू 200 टेराहर्ट्ज, 1550 मींस 192.3 समथिंग टेराहर्ट्ज है। सो दैट कम्स अंडर द लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट एंड अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट, तो उसके अंडर ही आ रहा है सारा कुछ। तो अगर मैं इसको दोबारा से सिमुलेट करता हूं, तो what I can see here is signal to noise ratio 44.45। एक्चुअल IEEE और अच्छे जर्नल्स जो पेपर्स हैं जैसे ऑप्टिका वगैरह है, उसके हिसाब से आपका ऑप्टिमम वैल्यू शुड बी लाइक अप टू 30 dB होना चाहिए। तो ज्यादा ही अच्छा आ रहा है, यहाँ पे 44.45 आ रहा है। तो दीज आर द मैथमेटिकल इक्वेशंस। ये SNR जो है दैट इज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू नॉइस रेशियो, और ये OSNR दैट इज ऑप्टिकल सिग्नल टू नॉइस रेशियो, ये 46.49 है, ये भी बहुत अच्छा है। तो इसकी भी वैल्यू लगभग सेम ही होती है, 30, 35, 25। So all these parameters and analysis, noise power, signal power, ये सारा कुछ एक अच्छी रेंज हमें मिल रही है यहाँ पे। So it proves that our signal designed here or optical communication system designed here is perfect. कोई question, any question till now? Any query? No, sir. I hope it is like feasible for you to understood everything. Okay, so ये हमारा था ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड कम्युनिकेशन। अब अगर हम थोड़ा सा फाइबर के रिलेटेड बात करें, थोड़ा बहुत, बाकी आगे थोड़ा चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि ऑप्टिकल फाइबर होती क्या है। ऑप्टिकल फाइबर एक ये डायग्राम है, एक क्रॉस सेक्शन डायग्राम। Optical fiber is the technology associated with the data transmission using light pulses traveling along with the long fiber, which is usually made of plastic or glass. अब वहां पे हम ऑप्टिकल फाइबर लगा रहे हैं, ये आपकी लैब में पड़ी हुई है, एक पतली सी फाइबर होती है, आपने कभी देखी भी होगी एक्चुअल में। तो उसके अंदर का मटेरियल ये होता है, बाहर आउटर जैकेट, देन स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन, फिर उसकी कोटिंग, देन क्लेडिंग एंड देन कोर। एक बार अगर मौका मिले तो जरूर ऑप्टिकल फाइबर जरूर देखना, और उसके साथ में उसकी जो डाटा शीट होती है वो जरूर पढ़िएगा कि उसकी वेवलेंथ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, किस मटेरियल की बनी हुई है। तो ये सारा कुछ जानना बहुत जरूरी है। देन ट्रैपिंग लाइट इन ए कोर। नाउ अगर आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे होंगे प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो एक ये GIF है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इधर से ये लाइट आ रही है, देन प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये कोर से क्लैडिंग से बाहर निकल के मतलब ट्रैवल कर रही है लाइट। सो अगर हम इसकी कुछ मेन हाइलाइट्स पे बात करें, ट्रैपिंग लाइट इन ए कोर, ट्रैप होना बहुत जरूरी है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ अ सेंट्रल कोर, अ सराउंडिंग लेयर नोन एज द क्लेडिंग, जो बाहर की इसकी सतह है। द कोर इज प्रोवाइडेड विद अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कोर होती है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होती है, while a lower refractive index is used for the cladding। आउटर वाला पोर्शन जो क्लैडिंग है इसकी उससे लोअर होती है। This difference in refractive indices is incorporated to ensure smooth travel of light along the core। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना के हिसाब से हायर टू लोअर जो ये लाइट है ये ट्रेवल कर रही है। लाइट ट्रेवल अक्रॉस द बाउंड्री बिटवीन द मीडियम्स विद द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट फ्रॉम अ मीडियम विद द हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू अ मीडियम विद द लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कोर से क्लेडिंग, कोर में हमेशा हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्लेडिंग में लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सो लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड व्हेन द इंसिडेंट एंगल बिकम्स रादर लार्जर। तो इसी फिनोमिना के अकॉर्डिंग जो इंसिडेंट एंगल बनता है थीटा हमारा, वो लार्जर
जो है वो बनता है। ऑप्टिकल सिग्नल्स ट्रेवल अलोंग द कोर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स. Optical fibers are made in such a way that optical signals undergo total internal reflection at the boundary between the core and the cladding. यहाँ पे owing to the difference in the refractive indices of the two media. तो लाइट तभी ट्रेवल कर पाती है हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर टू क्लैडिंग. This principle of total internal reflection is used to trap optical signals within the core. ये सारा का सारा फिनोमिना जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एक ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए. ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में क्या होता है, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, फिर कोर में गई, कोर से क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है वहां से फिर क्लैडिंग की तरफ जाएगी टुवर्ड्स द लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये जो फिनोमिना है ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है बनाता है और लाइट को ट्रेवल करता है. सो दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. आई डू होप. एनी क्वेश्चन? कुछ आपने तो पढ़ा ही होगा ये +1 +2 फर्स्ट ईयर में फिजिक्स थी उसमें भी पढ़ा होगा, राइट? Yes, sir. या ओके. सो दिस वाज द फिनोमिना ऑफ ट्रैपिंग अ लाइट इन ए कोर. अब उसके बाद में आते हैं कुछ सिंगल मोड फाइबर या आप कह लो कि सनलाइट और अदर लाइट कैसे मतलब लेजर बीम ज्यादा बेटर है इनसे, वो यहाँ पे बात करते हैं. लेजर लाइट इज यूज्ड फॉर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस फॉर द सिंपल रीजन दैट इट इज अ सिंगल वेवलेंथ लाइट सोर्स. जैसे हम वहां पे 1550 nm की बात कर रहे थे, सिंगल वेवलेंथ सोर्स था. सनलाइट और द लाइट emitted by a light bulb is a mixture of many different wavelengths of light. मीन्स अगर आप बल्ब की बात करें या सनलाइट के सामने आप रख दें फाइबर को और सोचें कि इसमें से ट्रेवल होगी, दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज वो वेवलेंथ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस वेवलेंथ, वो गड़बड़ हो जाएगी. तो इसीलिए सिंगल वेवलेंथ लेजर बीम जो है वो यूज करते हैं फाइबर कम्युनिकेशन में. द लाइट वेव्स of such light are all out of phase with one another. They do not produce a very powerful beam. Means अगर सनलाइट की बात करें, जैसे ये आ रही है सनलाइट है, तो ये आप अगर इसको देखो यहाँ पे, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, ये सनलाइट है. आप यहाँ पे देखो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही नहीं बन पाएगा, ये फेड हो जाएगी. ये सारे आउट ऑफ फेज हैं, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स जो हैं इसके अंदर ट्रेवल करने की कोशिश कर रही हैं, बट the output will be like fade light or no output. Whereas अगर हम बात करें लेजर बीम की, अब लेजर बीम देखो सिंगल वेवलेंथ है और एक ही लय में वेवलेंथ कोर पे स्ट्राइक करेगी, कोर से क्लैडिंग पे करेगी और ये सारी की सारी फेज में होंगी. Laser beams, however, have a single wavelength and so their waves are all in phase, producing very powerful light. तो दैट इज द रीजन हम लेजर बीम यूज करते हैं क्योंकि सिंगल वेवलेंथ पे है. द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवलिंग अलोंग एन ऑप्टिकल फाइबर चेंजेस इन अकॉर्डेंस विद इट्स वेवलेंथ. Ordinary light contains many different wavelengths of light. Differences emerge in speed of transmission, reducing the number of signals that can be transmitted in any set time. So ये रीजन है क्यों ऑर्डिनरी लाइट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स होने के कारण स्पीड नहीं इमर्ज हो पाती ट्रांसमिशन के दौरान, एंड द नंबर ऑफ सिग्नल्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. बीइंग अ सिंगल वेवलेंथ लाइट सोर्स फ्रॉम द यूनिफॉर्म फेज, laser light travels smoothly with very little dispersion, making it ideal for long distance communication. So that is the reason long distance communication के लिए जैसे हम बोलते हैं कि सिंगल मोड फाइबर यूज करते हैं क्योंकि हम सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स उसमें यूज करते हैं लेजर बीम. So that is the reason these are efficient for optical fiber communication. I hope it is understandable. उसके बाद में बात करते हैं सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर. आप लोगों ने सुना होगा कि सिंगल मोड फाइबर भी आती हैं, मल्टी मोड फाइबर भी आती हैं. तो इनका क्या रोल है, एक सिंपल भाषा में बताता हूं. सिंगल मोड फाइबर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं एंड दीज आर वेरी एफिशिएंट. अगर मैं बोलूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ऑप्टिकल फाइबर ले डाउन करनी है तो उसमें कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव रहेगा और उसमें सिंगल मोड फाइबर ही यूज होगी.
जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ आवर कंपनी इज वर्किंग विद L&T, ये जो विस्ता प्रोजेक्ट है मोदी जी का, यहाँ पे दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस नया बना है, विस्ता प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, सारी दुनिया जानती है। सो वी आर अ पार्ट ऑफ L&T, क्योंकि L&T जो है वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट कर रहा है, एंड दे आर लेइंग डाउन ऑप्टिकल फाइबर्स फॉर द कनेक्टिविटी एट वेरियस डिफेंस एंड एयरफोर्स सेक्शंस फ्रॉम दिस विस्ता और PMO हाउस फॉर वेरियस डिफेंस पर्पसेस। सो उसमें सारी की सारी सिंगल मोड फाइबर है। हाँ, अगर विद इन द सेम कैंपस 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर मेरे को यूज करनी है फाइबर, देन आई कैन यूज मल्टी मोड, कोई इशू नहीं है। अभी इसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं। Optical fibers can be divided broadly into two types according to the way in which they transmit optical signals. One type, known as single mode fiber, has a thin core, इसकी core बहुत thin होती है, with a diameter of about 10 microns, or you can say the 1 micron, that is 1 millionth of a micron, and allows light pulses to propagate only in one mode. The other type, multi-mode, has a thick core of about 50 micron meter and permits the propagation of multiple light pulses of different angles of reflection. In multi-mode fiber, the distance at which signals can propagate differs according to the angle of reflection, resulting in disparities in the arrival time of signal. मतलब कि एक ही टाइम पे सारे सिग्नल मिल जाएं ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट हाँ अगर डिस्टेंस शॉर्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज सच, मल्टीमोड फाइबर्स आर यूज्ड मेनली फॉर लो एंड मीडियम कैपेसिटी ट्रांसमिशन ओवर रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब अगर हम कुछ मेगाबिट्स या गीगाबाइट पे बात करें थोड़ा बहुत, तो मल्टीमोड फाइबर इज मोर देन सफिशिएंट फॉर लो एंड मीडियम कैपेसिटी। यहाँ पे कैपेसिटी की बात आ जाती है ट्रांसमिशन की, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए दैट इज फाइन। आई रिपीट इट अगेन, multi-mode fibers are used mainly for low and medium capacity transmission over relatively short distances. Most optical fiber in use today is single mode fiber that enables high speed and high capacity transmission. अगर हम कहते हैं कि फाइबर टू होम हमारे घर के ब्रॉडबैंड में 100 Gbps की स्पीड आ रही है, अब कोई मूवी भी डाउनलोड करनी हो 2 GB की तो उसको 1 मिनट भी नहीं लगता। So that is only enabled through high speed single mode fiber, क्योंकि वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है वो हमारा सिंगल मोड फाइबर पे चल रहा है। So that is the only utility. सिंगल मोड फाइबर इसलिए ज्यादा फेवरेबल है, हाई स्पीड एंड हाई कैपेसिटी। आई डू होप इट इज क्लियर। Yes, sir. ओके, सो अब ये बातें तो रही सारी सिंगल मोड फाइबर देन ट्रांसमिशन की। अब कैसे ट्रांसमिट करते हैं फाइबर ऑप्टिकल फाइबर से? ऐसा तो है नहीं कि हमने वो मेड इन चाइना की लेजर सोर्स ली, वो 30-40 रुपए की जो आती, जिसमें बचपन में खेलते थे सब लोग कि लाल रंग की लेजर लाइट मार रही है, दीवारों पे मार रहे हैं हम और खेल रहे हैं। नो, वो भी लेजर है, बट एक्चुअल में यूटिलिटी कैसे यूज कर सकते हैं एक लेजर की, वो एक ये डायग्राम देख सकते हो आप कि यहाँ पे लेजर डायोड है। लेजर डायोड मींस लेजर सोर्स, वो जो हम CW लेजर ऑप्टिक सिस्टम के कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं एज ए सोर्स जो कैरी कर रहा है इंफॉर्मेशन को, वो लेजर डायोड है। उसके आगे एक कॉलीमेंटिंग लेंस लगा हुआ है, लेंस के बाद एक आइसोलेटर है, आइसोलेटर के बाद एक लाइन जनरेशन लेंस लगा दिया है, और उसके अंदर फिर ऑप्टिकल फाइबर जो है वो फिट हो जाती है। So that is the only criteria how you can pass the laser diode, और कह लो कि मॉड्यूलेशन के बाद भी अगर स्टेप करना हो तो यही होगा। मॉड्यूलेटर के बाद आइसोलेटर लगेगा, आइसोलेटर के बाद लाइन जनरेशन लेंस लगेगा, उसके बाद में ऑप्टिकल फाइबर होगा। आई थिंक ये इमेज आपको दिख रही होगी। मैं वैसे ये प्रेजेंटेशन जो है वो आप सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर दूंगा ताकि आप अपनी नॉलेज थोड़ी सी और एनहांस कर सको। आपके करिकुलम में या आपने जो भी पढ़ा है, नो डाउट उसमें बहुत डिटेल में होगा, बट दिस डाटा इज लाइक गॉट रेडी थ्रू द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो एक्चुअली फिजिक्स में होती हैं। आपके जो फिजिक्स के प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे,
आप उनसे भी ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं और वो आपको बहुत ही एफिशिएंट वे में, हो सकता है कि आपके जो लैब में इक्विपमेंट पड़े हैं उनके थ्रू आपको और अच्छे से समझा पाएंगे. बट आई कैन पास ऑन दिस प्रेजेंटेशन टू यू पीपल सो दैट यू कैन गो थ्रू दिस, राइट. नाउ सेंडिंग लाइट बाय ऑप्टिकल फाइबर, ये थोड़ा सा इसका जो टेक्निकल डाटा है पढ़ लेते हैं. Optical fibers have cores with diameters ranging from 10 to 50 microns. जरूरी नहीं है 10 to 51 माइक्रॉन से भी शुरू कर सकते हो for single mode fiber. Optical signals are fed into the cores of these fibers using devices known as LD, that is laser diode module. Laser light generated by a high output laser diode is passed through the lenses of laser diode module to be fed into the fiber core. Two types of lenses, you can say, that is elliptical or collimating lens and a rod shaped line generation lenses are used to focus the laser beam and direct it towards the optical fiber core. So that is a simple fundamental कि एक लेजर डायोड के साथ या लेजर सोर्स के साथ आप ऑप्टिकल फाइबर को कैसे जोड़ोगे या उससे लेजर डायोड का जो डाटा है, जो लेजर है, वो कैसे पास ऑन करोगे ऑप्टिकल फाइबर से. अ सिंपल फंडामेंटल. कोई क्वेरी हो तो प्लीज आस्क मी, डू नॉट हेजिटेट. जस्ट अ सेकेंड. Okay, so coming back to this, I hope this sending light by optical fiber is clear. So ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं, एक जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, तो डिस्कस भी कर लेते हैं. अगर आपके पास कोई स्टोरी होगी तो यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद मी रिलेटेड टू ऑप्टिकल फाइबर. अब ऑप्टी फाइबर हम क्यों यूज करते हैं, ऑप्टी फाइबर जो सॉफ्टवेयर है वो हम क्यों यूज करते हैं वो मैं बताता हूँ. Telecommunications using fibers as the transmission media is now a major industry. Choosing appropriate fiber parameters is an important issue for a given optical system. Cross-sectional dimensions, material composition, and refractive index profile all influence the losses, dispersion, and the non-linearity of the fiber and must be chosen carefully to achieve a satisfactory trade-off for a given application. मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बताता हूँ, जैसे HFCL है, स्टरलाइट लिमिटेड है, उसके बाद में एयरटेल है, अक्ष ऑप्टिकल फाइबर है, पैरामाउंट है. ये ऐसी ऑप्टिकल फाइबर की कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर्स बनाती हैं. सबसे ज्यादा पैरामाउंट बिकती है, स्टरलाइट लिमिटेड पुणे में है, औरंगाबाद में है, वो भी बनाते हैं. और अच्छे अच्छे हाई डिफेंस सिस्टम्स में पैरामाउंट की भी जाती हैं, अक्ष ऑप्टिक फाइबर भी जाती हैं, HFCL भी जाती हैं और स्टरलाइट लिमिटेड की भी जाती हैं. तो ये सारे के सारे जो मेजर MNCs के मैंने नाम लिए हैं अभी, ये ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं. और इनको बनाने से पहले ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ऑप्टी फाइबर, इसको यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये अप्रोप्रिएटली फाइबर पैरामीटर जो होते हैं कोर एंड क्लैडिंग के, उसके क्रॉस सेक्शन डायमेंशंस, उसका मटेरियल कंपोजिशन, मतलब किस मटेरियल की बनानी है, ग्लास की है, डोप्ड सिलिका की है, या सिलिका और ग्लास के मेन कंपोजिशन डोप करके बनाई गई है, फिर उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल क्या बन रही है, उसमें लॉसेस कितने आ रहे हैं, डिस्पर्जन कितनी आ रही है, नॉन लिनियरिटी कितनी है. नॉन लिनियरिटी मतलब एक तरह से जो कंपोजिशन होती है एक फाइबर की, उसके मटेरियल के रिलेटेड जब एक डाटा ट्रांसमिट होता है या हम कह लो कि लेजर लाइट ट्रांसमिट होती है, तो नॉन लिनियरिटीज क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी अटेन्यूएशन, लॉसेस, डिस्पर्जन क्रिएट होते हैं. सो दैट इज द रीजन कि फाइबर भी एक अच्छी बननी चाहिए, एंड दैट मस्ट बी चूजन केयरफुली टू अचीव द सेटिस्फैक्टरी ट्रेड ऑफ. तभी तो
ढंग से बेच पाएंगे, तभी तो BSNL, एयरटेल, जियो जैसी कंपनीज जो है वो खरीद पाएंगी उन फाइबर्स को। तो ये सारे का सारा जो कॉरपोरेट सेक्टर है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट PSUs की बात करें या हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, रिलायंस जैसे, तो ये लोग बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके चीजों को बनाते हैं और खरीदते हैं। तो उस चीज में ये कंपनियां जो है वो ये सॉफ्टवेयर हमारा ऑप्टी फाइबर यूज करती हैं। एक ये बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। All these parameters of existing fiber samples could be experimentally measured and then the fiber manufacturing process adjusted towards an optimized production. तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सिमुलेट करके उसको देख के ध्यान से कि हाँ अब सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, इन पैरामीटर्स को रखने के बाद लॉसेस कम है, डिस्पर्जन कम है, तो ये उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे ऑप्टिमाइज करते हैं, बनाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। However, this trial and error approach is extremely slow, expensive, and unreliable. Moreover, some important fiber parameters, for example, the total group velocity dispersion and the effective nonlinear coefficient, are not directly measurable with compact tabletop devices. Means एक छोटी सी R&D एक लैब में करने से हम इन पैरामीटर्स को, जैसे नॉन लीनियर कॉफिशिएंट है, ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्जन है, ये एक ही बार में हम इसके बारे में रिजल्ट ओरिएंट या कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ये कम से कम 10, 15, 20, 100 तरीके की ऑप्टिकल फाइबर बनाने के बाद एक कंक्लूजन पे निकला जाता है कि ओके दैट्स इट, जो भी पैरामीटर सेट किए हैं अब इसमें ये जो पैरामीटर हैं ये अब स्टेबल हैं, और उसके बाद में ये कंपैरेटिवली उसको मतलब फाइनली एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि यस अब मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ओके, so optical fiber is the leading commercial product in that category. Optical fiber जो product है, it is a powerful tool that blends numerical mode solvers for fiber modes with calculation models for group delay, group velocity dispersion, effective mode area, losses, polarization mode dispersion, effective non-linearity, etc. Among the most powerful features of OptiFiber are its ability to predict how any given fiber could be optimized versus a design goal. For example, small but non-zero dispersion and maximal mode area. कहने का मतलब ये है कि OptiFiber ये सारे के सारे जो नॉन लिनियरिटीज हैं या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, इसमें बेस्ट टूल है इसमें R&D के लिए। अब अगर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो लेबोरेटरीज में जो डिवाइसेस बनाए गए हैं, सच एज एक्सफो का NR9200 ऑप्टिकल फाइबर एनालाइजर, तो इसके रिलेटेड, और अगर कॉर्निंग USA आपके जो भी सिंगल मोड फाइबर एक सैंपल यूज किया जा रहा है आज इंडिया में, वो रेप्लिका है ऑप्टिकल फाइबर जो बनी है, कॉर्निंग कंपनी है, कॉर्निंग इंक USA, उनका मॉडल है SMF28 सिंगल मोड फाइबर 28। उस मॉडल को यूज करके ऑप्टिकल फाइबर्स बनी हैं, जितनी भी बनी हैं सारी की सारी। सो दैट इज देयर पेटेंटेड प्रोडक्ट फ्रॉम कॉर्निंग, और ऑप्टी फाइबर में उसका एग्जांपल भी दिया हुआ है। तो आज ज्यादा और बोर ना करते हुए, आई डू होप कि आपको ऑप्टिकल फाइबर और इसके रिलेटेड जो कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट हैं थोड़े बहुत समझ आए होंगे। कल इसी से ही आगे बढ़ेंगे, एंड आपको कोई भी और क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, डू नॉट हेजिटेट।